अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया आबिद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ 101 इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ हैं सईदा ज़ैदी, जो कि यूईटी में पढ़ाती रही हैं। हमारी इनसे आज बात होगी और हम देखेंगे कि इनका सक्सेसफुल जर्नी कैसे रहा और ये यूईटी से क्नेट तक और इनकी हॉबीज़ और क्या क्या हैं। लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू 101। थैंक यू। कैसी हैं आप? So, आपने इतना अर्सा 32 years you have been teaching in UET. How was your experience and what were your subjects that led you to that university? जी, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और ये जो है ना प्लेटफॉर्म्स औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर प्रोवाइडिंग वन बिकॉज हमारे माशरे में ना औरत को हमेशा दबाया जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक आउट, राइट? इफ दे आर working women, they have their own problems. If they are home makers, they have their own problems, but they can't talk about their problems. They are generally बोलेंगे तो कहेंगे जी ये लड़की बोलती है, ये औरत बहुत तेज है। बिल्कुल ऐसे ही है। So this whole society is prone to regard men as the leaders and women as the followers. Exactly. तो ये चीज़ मुझे हमेशा ज़रा अच्छी नहीं लगती। And I want platforms such as these in which women can express their views, their difficulties, their hopes, desires, whatever. तो ये बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म एक शुरू किया है and I was very glad to hear about it. Thank you so much. So congratulations for that. Thank you so much. मैंने ये सोचे कि मैंने शुरू से ही ना अंग्रेजी में तैरना शुरू किया। मैंने इंग्लिश एक चर्च स्कूल, एक कैथेड्रल स्कूल है लाहौर में, वहाँ से अर्ली मैंने एजुकेशन की और एट दैट टाइम आई डिड माय स्टडी इन कैम्ब्रिज एट द एंड ऑफ 60s। मैं वो स्कूल बहुत डिफरेंट था। There were British teachers there and we were taught by British teachers. तो हमारी जो फाउंडिंग है या जो स्टार्ट था वो अंग्रेजी में था। तो आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग शुरू से। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग। तो उससे अंग्रेजी को बढ़ावा मिलता है एंड बीइंग इन दैट स्कूल आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑन टू कैनेट कॉलेज। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, बहुत अच्छे मार्क्स लिए। I was a very good student from the beginning and I was also interested in teaching. तो मैं अपनी मुलाजमों के बच्चों को ही बिठा के तुमको पढ़ाया करती थी। हाँ, ये एक बहुत मजे की बात है क्योंकि जब हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या बनना चाहोगे, तो अक्सर बच्चों का ये आंसर होता है कि टीचर बनना चाहेंगे, लेकिन with the passage of time they forgot. They get other opportunities. Yes. Right, but yes, I was I loved studying and love teaching. तो वो मुलाजमों के बच्चों को भी मैं कहीं स्कूल भेजो, इनको आते थे, फिर मैं उनको वो कराती थी 7वीं 8वीं जमात में। तो later on I did my MA in English language and literature from Punjab University. उसके बाद just I taught for a few months in SNF Foundation. उसके बाद I got married. So I married a lecturer in UET. Later he retired as a professor, लेकिन उसका lecturer थे। अच्छा। So he was an engineer teaching in metallurgy department. तो उसके बाद I shifted to the colony and did he support you to opt this profession, your husband? Yeah, he encouraged me, but my subject was not engineering. So I just stayed there for 3 or 4 years. I had 2 daughters, and after that there were 2 posts available for English in UET. Yeah, in UET, in humanities department. So then I started. I applied for the job and I got the job. So my husband was in a different department. There are various departments in engineering university. I was in the humanities department. Okay. So वहाँ पे my subject was basically language. It was not literature. They are not interested in literature naturally. They don't know. They are science students. तो उनको मैं पढ़ाती थी ये technical writing, business letters, report writing, CV writing, इस तरह की चीज़ें and presentation skills.
which are very, Very important for all students, all students. whether they are business students or engineering, medical, whatever. Presentations are very important. तो वो subject मैंने पढ़ाना शुरू किया. And right in my retirement, I was basically teaching that subject. Communication skills, it was called. Okay. So how was your experience there? आप तो बहुत favorite teacher होंगी. Yes, probably. But my experience was very good. जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, I was in my 20s at that time, and my students were probably 4 years, 5 years Younger than you, yes. जी, तो सबने बड़ा डराया था कि वो तो स्टूडेंट्स बड़े राउडी हैं, बहुत वो बदतमीजी करेंगे, ये करेंगे, छेड़ेंगे तुम्हें. मैं वैसे मुझे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, never in all my years they always respected me from the beginning, जबकि स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट थे, till my retirement. जबकि आप बात करिए in 1980 में you have started 80s में, so तब उस वक्त तो UET ही एक यूनिवर्सिटी थी for engineering, और yes. बहुत उसका हाई मेरिट हुआ करता था, और वहाँ की जो स्टूडेंट्स थे वो अपने आप को बहुत समझते थे कि हम कोई चीज़ हैं, so उसमें तो आपको और भी काफ़ी चैलेंजेस हुए होंगे. जी, I was the number 2 teacher to join as a lady teacher. There was only one female teaching in chemistry department. Hats off to her, she was the first one. So I was the second one. तो इसीलिए वो मुझे थोड़ा सा ट्रेपिडेशन जिसको कहते हैं, थोड़ा सा फियर था. लेकिन जैसे मैं क्लासरूम में एंटर हुई ना, I felt very confident. मैं बड़े कॉन्फिडेंस से स्टूडेंट्स को ग्रीट किया, स्टूडेंट्स को. So right from the beginning, they developed a sort of respect for me, and it continued. So right from the first day, आपने उनको उनकी do's and don'ts बता दिए. हाँ, मैंने बड़ा फ्रेंडली एटीट्यूड रखा. मैं मजाक भी कर लेती थी उनके साथ, हंस भी लेती थी. लड़कियां बहुत कम थी उस वक्त, लड़के ही थे ज़्यादा वहाँ पे. और अब तो खैर माशाल्लाह about 50-50 का रेशियो हो गया है. बिल्कुल, और वहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए. बहुत ज़्यादा हो गए. But at that time, students were also very few. Girl students. So I was, slightly sort of under awe कि मैं सारे मर्द होंगे, all male teachers and all students male, but वो सब unfounded ही हुआ. मतलब I was always given respect. मुझे बहुत हमेशा मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई. No behavioral inconsistency. No. अच्छा, ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है. ये बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स भी तरह के होते हैं. कुछ बहुत some of them are psychological, कुछ cases भी होते हैं, but I was lucky. तो मेरे बाद बहुत सी female teachers वहाँ आई, and when I retired there were quite a few teaching there, chemistry में, chemical में, ह्यूमैनिटीज़ में तो थे ही सिर्फ 2 मेल्स और बाकी कोई 10 फीमेल्स आ चुकी थी उस वक्त. जी, आप तो कैसे उस एरा को और आपको जो है कंपेयर करेंगी फॉर वुमेन? अब लड़कियां आ रही हैं बहुत सी फील्ड में, और उस वक्त बहुत कम थे. उस वक्त चैलेंजेस ज़्यादा थे या अब ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा चैलेंजेस हैं? मेरा ख्याल है जनरली जो हमारी जनरेशन है ना, इट हैज़ गेन्ड कॉन्फिडेंस. अब वो कॉन्फिडेंस सही है या गलत है, आई डोंट नो, बिकॉज आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, दे लव टॉकिंग बैक टू टीचर्स, टू पेरेंट्स. वो उस तरह के नहीं हैं जैसे हमारे वक्तों में. मैं तो यही कहूँगी हमारे वक्त, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं. तो उस वक्त स्टूडेंट्स ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे. उसकी वजूहात मेरे ख्याल में ये थी कि जनरली एक तो brought up different था, इंटरनेट नहीं था. There was no exposure to other cultures and other behaviors. तो उससे students have picked up now this attitude that they can just get away and they don't need to be serious students. And teachers तो ठीक हैं, बस उसमें टीचर्स का भी कसूर है. We had some dignity. We used to go to the classroom with dignity. I was very plainly dressed.
I never, was कुछ छैल छबीली बल्कि मैं कभी नहीं गई क्लास में. So I was plainly dressed. I was, I knew that I was a teacher. I was a model for students, and I should be. A distance should be there, slight different distance. चाहे मैं friendly भी होती थी, तो भी nobody took advantage of me. अब teachers जो हैं उनके goal सिर्फ ये हैं कि they have to pass the hour, they have to get the salary. तो वो ज़्यादातर teachers devoted नहीं रहे, ज़्यादातर students भी devoted नहीं रहे, तो दोनों का ही वो व्यू पॉइंट बदल गया है. It's not, we can't blame the students. The teachers are equally not devoted. They are more concerned with making money, getting odd jobs elsewhere. जल्दी काम अपना इधर. In UET में I used to see that teachers used to have multiple assignments. तो इस तरह से वो they were not that devoted or dedicated as we were. I was always on time. मैं late नहीं होती थी. So you have to be a model for the students to follow and respect you. If they see the teacher coming half an hour late, naturally they will not treat him or her seriously. तो ये टीचर्स यंगस्टर्स का बहुत एटीट्यूड बदला है, और हमारे माशरे में एक बड़ी मुसीबत है कि जो यंग लोग हैं दे डोंट हैव अ रियल कल्चर, मैं कहूँगी ट्रू कल्चर टू फॉलो. दे आर आइदर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर or they are being influenced by the ZTV movies etc. कुछ वो भी इन्फ्लुएंस आ रहा है. बिल्कुल ठीक है. इसमें मैं आपको सेकंड जरूर करूँगी कि अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं वो उनका वाकई में कल्चर जो है ना वो दे आर हाफ वेस्टर्न, बल्कि मोर देन हाफ वेस्टर्न, क्योंकि इंटरनेट पे वो नेटफ्लिक्स है, बहुत से और चैनल्स हैं जिनको वो देख रहे हैं, और दे आर लर्निंग फ्रॉम देम नॉट फ्रॉम द पेरेंट्स का इसमें ज़रूर मैं कहूँगी कि अगर पेरेंट्स भी उतना ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों को देखें जितने हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स देखते थे, तो उनमें भी चेंज आए. सब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ का कसूर नहीं है, पेरेंट्स के एंड पर भी है कि वो अपने बच्चे को कैसे लुक आफ्टर करें. इन सब के साथ साथ आपकी हॉबीज़ क्या ना? जी, हॉबीज़ का मैं बताती हूँ, उनकी बात उसको कंटिन्यू करते हैं. स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक यहाँ पे बड़ा अजीब बात है, यानी दे लर्न द बैड थिंग्स फ्रॉम द अदर कल्चर्स. वो जो अच्छी बातें हैं ना वेस्ट की, वो नहीं सीखेंगे. वक्त की पाबंदी है, ऑनेस्टी है, बिल्कुल सबसे पहले ऑनेस्टी, तो वो नहीं सीखेंगे. गरीबों की रिस्पेक्ट नहीं सीखेंगे. इस तरह पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं सीखते. गलत बातें उन्होंने बहुत अच्छी पिकअप कर ली है, अच्छी बातें नहीं की. तो talking back to their parents etc. that is allowed, but they are they don't have that thing कि they should help their parents also. अगर माँ किचन में है तो जाके उसकी हेल्प भी करें. वो वैसे नहीं सीखेंगे. हाँ, वो नहीं सीखेंगे. अपना रूम साफ कर लें, ये भी नहीं सीखेंगे. So they are double उनको एडवांटेज है. So they are getting all the advantages. नौकर काम कर रहे हैं, वक्त उनके पास बहुत है अपनी हॉबीज में वो करने का. अपना जो अच्छी हॉबीज भी खत्म हो गई, रीडिंग खत्म हो गई. मैं तो बड़ी एडवोकेट हूँ रीडिंग की, कि रीडिंग से आप की एक्सपोजर होती है टू अदर कल्चर्स, टू अदर कैरेक्टर्स, और इनसे आप बिहेवियर सीखते हैं, उससे आप उसकी तरबियत होती है. बहुत अच्छी तरबियत गाह है किताबें. तो वो नहीं, उसमें वो सब इंटरेस्ट आता है. हम अब से मूवीज हैं और विजुअल आ गया है, वी कांट ब्लेम देम आइदर, क्योंकि विजुअल इज टेकन ओवर. तो ये सब है. तो मैं एक जब कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाती थी तो मैं सिर्फ ये नहीं बताती थी कि बेटा तुमने खत कैसे लिखना है, या तुमने इंटरव्यू कैसे देना है, या तुमने आपस में किस तरह बातचीत करनी है, कॉन्वर्सेशन. मैं उन्हें ये भी सिखाती थी कि इंटेग्रिटी और मोरालिटी बड़ी चीज़ है बिजनेस में. अगर आप डेडलाइन पूरी नहीं करेंगे, अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं होगा, तो यू वोंट गेट बिजनेस. बिजनेस स्किल्स पढ़ाने में यही होता था ना, यू हैव टू सेल योरसेल्फ, यू हैव टू गेट गुड बिजनेस. अच्छे लेटर्स लिखने आने चाहिए, अच्छा ग्रीटिंग आनी चाहिए, अच्छी तरह से बिहेव करना, ये सब हम सिखाते थे. तो उसके साथ में उन्हें मोरालिटी भी सिखाती थी. मैं कहती थी देखो, अगर आप उनको सही तरह ट्रीट नहीं करोगे, अगर सही तरह उनसे उनकी जो डेडलाइंस है पूरी नहीं करोगे, और सही वक्त पे उनको नहीं पहुंचाओगे चीज़, या अपने जो वर्क प्लेस है उसमें कोलीग्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखोगे,
तो देन यू वोंट सक्सीड, आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिजनेस में यू हैव टू बी वेरी courteousness and of course honesty and integrity, उसके ऊपर भी मैं जोर देती थी। तो मैं एक तरह से उनको ना, जैसे हमारे टीचर्स हमारे खुद बड़े तरबियत करते थे हमारी, हमें सही बातें बताते थे, उस तरह से आई थॉट कि मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे इनका कैरेक्टर भी कल्चर करना है, इनको सही रास्ते पे भी रखना है। तो आई गेव सम एम्फेसिस ऑन दैट आल्सो ड्यूरिंग माय टीचिंग, सो दैट्स इसीलिए आपका इतना अच्छा पीरियड वहाँ पे 32 इयर्स, इट्स अ लाइफ टाइम है ये। उसके बाद मैंने कैनेट कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ पे आई स्टार्टेड टीचिंग आफ्टर आई रिटायर्ड फ्रॉम UET। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, गर्ल्स कॉलेज था, आई एंजॉयड इट एंड दैट वाज हाउ आई कंटिन्यूड माय प्रोफेशन। तो बड़ा अच्छा, मेरे दोनों इंस्टीट्यूशंस बड़े अच्छे थे, आई वाज लकी and I had a very good experience always. Right. So हम बात कर रहे थे आपकी hobbies की। Hobbies मेरी basically तो reading है। I read books. I've read Urdu and English both. जी। and बड़े अच्छे writers जो उर्दू के हैं, ये कुर्रतुल्लाह हैदर और हाजरा मस्तूर और खदीजा मस्तूर, इन लोगों को पढ़ा, classics and classical literature in English also, American also. तो एक वो मैं अभी भी कंटिन्यू करती हूँ। These days also I've got a book in Urdu and I'm reading that. तो उसके अलावा ये मैंने रिटायरमेंट के बाद फ्लोरल सोसाइटी ज्वाइन की, वो शायद आप जानती हो कि फूलों की आराइश से उसका ताल्लुक है। वो जो एक सुगेस्टू इकिबाना, वो इकिबाना से जी रिलेटेड। It's like making exhibits out of flowers and leaves and manipulating leaves and dry चीज़ों को भी पेंट करके और वो करके, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि आर्ट से मेरा कभी ऐसे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रहा था। तो ये पहली दफ़ा मैंने इसमें एक आर्ट के जॉन में आई एंटर्ड एंड बस वो आहिस्ता आहिस्ता सीखा, वो देख आप एंजॉय करती हैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ। बड़ा उसमें वक्त भी लगता है, उसमें कभी कभी एक एग्जिबिट बनाने में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, तो वो काफी रहा। जी, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे यूथ को? मैसेज में वही जो मैं कह रही थी कि ट्राई टू बी morality wise, be conscious and just and students should try to improve their English. क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर रही हूँ, तो आई विल गिव दिस मैसेज दैट दे शुड बी रीडिंग मोर, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सेस ऑन इंटरनेट। अगर वो सही वक्त का इस्तेमाल करें तो इंटरनेट पे ही वो अपनी अंग्रेजी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ट्राई टू, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल मीडियम और आजकल है इंटरनेशनल डीलिंग का ज़माना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो people who are working in America are sitting here and working from here in international remote jobs है। जी, jobs कर रहे हैं, बिल्कुल। So they have to deal with this language in all venues. तो इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने अंग्रेज़ी को बेहतर बनाएं। तो उसके अलावा जाहिर है माओ को चाहिए कि वो लाएं रीडिंग की तरफ, उनको बचपन से, यानी कि जब वो 1.5 साल का बच्चा होता है उस वक्त से उसे किताबों से रुशनास करा देना चाहिए। बिल्कुल उसे बताना। अब बाहर आप देखें अमेरिका वगैरह में कि दे आर, उनसे ज़्यादा तो नहीं कोई कंप्यूटर्स जानता ना, उनसे ज़्यादा तो कोई टेक्नोलॉजी ये वाली वहाँ यहाँ से ज़्यादा कॉमन है, अवेलेबल है। लेकिन हर उनकी जो छोटी सी भी लोकेलिटी है उसमें एक लाइब्रेरी है और चिल्ड्रन सेक्शन इतना खूबसूरत होता है कि बच्चे खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Every mother is taking the children to the library every week. और बच्चे वहाँ से किताबें लेते हैं। हर पार्क में वहाँ पे एक डब्बा होता है जिसमें आप किताबें वापस कर सकते हैं। They don't have to go to the library to return books. अच्छा। उसमें डाल देते हैं। And then they for other kids. For other kids. नहीं, मतलब रिटर्न करना है, लाइब्रेरी वाले कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। You don't have to go to the library to okay. जब आपको बोरो करना हो आप जाएं, वहाँ देखें, आप ले आएं। तो इस तरह से वो जो बच्चे हैं वो रीडिंग की तरफ शुरू से लाए जाते हैं। तो अब वहाँ इतनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह
लाइब्रेरीज तो है नहीं ना कोई चांस है कि साल कोई और जो लाइब्रेरीज है उनको भी अपडेट नहीं करते स्कूल्स में नहीं स्कूल में में हमारी भी इतना वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी थी लेकिन अब किताबों की और सबकी इम्पोर्टेंस यहाँ घटती जा रही है तो ये अच्छी बात नहीं है सो वी शुड कम बैक टू बुक्स एंड मदर्स should inculcate this habit of reading in the children. Right. उसी से वो बेहतर इंडिविजुअल्स देखेंगे वो कि बेहतर वो उठेंगे बच्चे. आई होप जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको आपकी बातों से बहुत ही अच्छी एक टिप्स मिले होंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से रीडिंग की तरफ लेकर आना है और स्पेशली टीचर्स को भी कि उनको अपनी डिग्निटी का कैसे ख्याल करना चाहिए और किस तरह से उनको अपने आप को यंग स्टूडेंट्स के सामने एज अ मॉडल पेश करना चाहिए. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके यहाँ का सेटअप देख के और ये कैरी ऑन दिस गुड सर्विस यू आर डूइंग प्लीज. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच.